ज़्यादा हम उसमें थे कि अब टीवी लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि हमें बहुत अफकोर्स जब कोई नाम सोचता है अपने बच्चे का तो बहुत डिक्शनरी वगैरह सब देखता है। दूसरी बात अतरंगी में इसलिए हम लाए क्योंकि फर्स्ट टाइम इन इंडिया टीवी में डेली सोप या माइक्रो ही चलते हैं या मूवी सेक्शन होता है। तो क्योंकि हम जीसी लेकर आए तो जीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके अंदर मैंने बताया जैसे ओटीटी ऑन टीवी, तो हम एक बहुत शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट ला रहे हैं जो कि शायद मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और हम टर्किश कंटेंट ला रहे हैं जो टर्किश के सीरियल्स चलते हैं, कुछ इंटरनेशनल सीरियल्स भी हैं जो हिंदी में कन्वर्टेड हैं विद इंडियन फेसेस या आप कह सकते हैं, करेक्ट। सो हम इसका नाम इसीलिए अतरंगी रखा क्योंकि हम इसके अंदर वैरायटी ऑफ मिक्स कलर्स होगा, इसलिए इसका नाम अतरंगी। My second question, I think Mr. Ali can take it. I am someone obviously who started my career with television. You know, I first worked with Telechecker.com, and obviously I have immense respect for the television industry. You know, because it is not easy to produce content. You know, write content on a day-to-day basis, shoot it, edit it, and unfortunately, obviously, you know that kind of environment. You know, I would say largely the content was restricted. I would say to A, B, C, a cliched content. Now, obviously, I have seen some cliched. Right now, we feel cliched, not then. Probably, I haven't followed television much lately, but I'm just summarizing my experience. So obviously now I see marquee names like Shweta is there, Shilpa ji is there, and I think one or two Rashmi is there. So now basically I wonder, I don't see those ladies here, but Ali, perhaps you can tell me, and since you're coming back after 10. Television, the traditional television content, that built a certain image. If I have to say the word sanskari image, of these magnificent actors and actresses. So now all of a sudden, I think it's also, I would say, a slight paradigm shift for y'all, to be, largely being seen in a, particular kind of content genre, and to be now playing this. Is it exciting, or at the same time, it's also, I would say, a risk? Ali, you can take forward, and I'll appreciate anybody, Isha, anybody can add to it. Thank you. I think we should always evolve with time. क्योंकि अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर 500 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, ओके, तो वो 1-2 साल में 1 बिलियन होने वाले हैं। तो अगर आप खुद इवॉल्व नहीं होगे समय के साथ में, तो फिर आप आप पीछे ही रह जाओ। You know what I mean, right? So because it is the time for the internet, and there is so much of content that is being consumed. मतलब यही बहुत बड़ी बात है यार, 500 मिलियन अब है, 2 साल में 1 बिलियन हो जाएंगे। तो we as actors हमें भी हमेशा अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, हमेशा अपने आप के अंदर स्किल जितनी ज्यादा आप डाल सको उतना डालते रहो। And it's always exciting because anything normal is very boring for every actor, right? मजा ही नहीं रहता है उसमें, कुछ अलग सा हो, क्योंकि all the actors are very delusional, है ना? उनको पागलपंती पसंद है, उनको क्रेजीनेस पसंद है, और कुछ नई एक्साइटिंग चीज हो तो जैसे एक बड़ा फनी सा किस्सा है। Okay, so this is like the first time on OTT. I obviously this is my debut web series and first time I kissed on in the series. Okay, तो मैं बहुत शर्मा रहा था, genuinely. Okay, तो मैंने अमित को सुबह 5-6 बजे मैसेज भेजा, यार ये ऐसे करो तो ठीक लगेगा, या ये ऐसे करो तो ठीक लगेगा, right? Because I come from that old school method, right, from television, correct? So then obviously it required a lot of characterization and understanding, all of it. But then it's a different cinema altogether, and there is nothing. But what actors enjoy in web series, it's that it has a start, it has an end. It's like a film, and I think nothing in the world is more beautiful than filmmaking. Hello. Hi, Akif. I think it means suranga, if I'm not mistaken. साउथ इंडियन भाषा में सुरंगा। Suranga. Is it because our director was South Indian? Our director was from the South. And the South connection. अरे साउंड इंजीनियर। हेलो, हाय विभू सर, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे आपने कहा कि कोई जैसा कंटेंट इसमें नहीं देखने मिलेगा, लेकिन उनका क्या जिनके अंदर आपने उम्मीद जगाई थी, जो आपके आस पे उल्लू ब्राउज करते थे, सो वो तो क्या हुआ? And I have second question also. मुझे लगता है ये अतरंगी का शो है, यहाँ पर अतरंगी के क्वेश्चंस पूछे प्लीज।
और फ्रस्ट्रेटेड माइंड की जनता की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। सर लेकिन जनता को कैसे डिवाइड करेंगे आप? मिक्स सर दोनों एप्लीकेशन अलग है, दोनों का प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, प्ले और आपके गूगल जीबी पे सब आप अतरंगी टाइप करेंगे तो अतरंगी दिखेगा, और उल्लू है तो उल्लू ही दिखेगा। हमने पहले दोनों को मिलाने की कोशिश करी थी, उल्लू 2.0 और उल्लू गोल्ड के नाम से। वो ब्रांड हमारा बन गया, लोगों ने उस पर, जैसा मैम ने भी बताया, कि उसी से शुरुआत करी गई थी जब शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये जितना भी नाम और टीवी और ओटीटी का बनाना, ये 8 महीने में हमारी टीम ने और हम सब लोगों ने स्टार्ट किया था। उसका कारण ही यही था कि हम पब्लिकली परसेप्शन को चेंज नहीं कर पा रहे, तो वो डिफरेंट ऐप है कि डिफरेंट ऐप। अच्छा, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल ये है कि उल्लू का कंटेंट बोल्ड था, उसके टाइटल्स भी बोल्ड में थे, अतरंगी का भी जो टाइटल है वो भी बोल्ड में है, तो आपके टाइटल्स बहुत कैची हैं, तो इसके पीछे आपने कुछ वर्क किया था या फिर इसके पीछे का रहा? कैची है तभी आपका क्वेश्चन है, क्या मतलब क्या सोच के सेम है? लेकिन यही है कि कैची अगर होते तो ही सामने वाला उसको कैच करता है, तभी उसके मन में क्वेश्चन आता है, और तभी, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ पिक्चर ही कमाल नहीं करती, पिक्चर से पहले उसका नाम, उसका पोस्टर, उसका ट्रेलर, उसका टीजर, उसके बाद आप ऑडियंस को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करके देखने पे मजबूर करते हैं। थैंक यू। मेरा 3 सवाल है सर यहाँ पे मेरा 3 सवाल है, ईशा जी के लिए, विभू जी के लिए एंड सर आपके लिए। सर आपके लिए पहला सवाल आपसे पूछूंगा। यस सर, माइक। सर, क्राइम पेट्रोल में तो हमने काफी बार आपको पुलिस का किरदार देखा है, और हमारे दिमाग में सिंघम पुलिस वाले तो आप ही हो। अतरंगी में सेम देखने मिलेगा कि कुछ अलग डिफरेंट देखने मिलेगा आपकी तरफ से? अलग डिफरेंट दिखने को मिलेगा, इसमें ग्रे कैरेक्टर है और कॉप नहीं, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो आपको कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। पक्का ना सर? पक्का। एंड ईशा जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा छोटा सवाल है, 3 जल्दी कंप्लीट करूंगा मैं। ईशा जी, हम देख रहे हैं, मैंने जब टीवी देखा तो मैंने देखा कि काफी टेलीविजन और बॉलीवुड दोनों मिलके आए हैं इस ऐप पे। आफ्टर 5 years, डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द सेलेब्स विल टर्न टू OTT? हम देखते हैं OTT में जिस तरह का कंटेंट आ रहा है पोस्ट लॉकडाउन के बाद से, जो लॉकडाउन के बाद से, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे सेलिब्रिटीज OTT करते हुए नजर आएंगे अतरंगी ऐप में? मुझे ऐसे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारे एक्टर्स ऑलरेडी आ गए हैं, कि चेंज इज कांस्टेंट, क्योंकि सारी दुनिया यही देख रही है, डिजिटल हो गई है दुनिया, तो इट इज बट ऑब्वियस। और खास करके यहाँ पे कंटेंट इतना अच्छा है, इतना एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है एज एन एक्टर का पेट भर जाता है, यहाँ पे मजा आ जाता है, चबा के डायलॉग्स बोले जाते हैं, और एक डेडलाइन होती है कि इसमें हमको शूट करना है और शो रिलीज होगी, तो आप अपनी ग्रोथ भी बहुत जल्दी देखते हो एज एन एक्टर, ये बहुत अच्छा है। उसके वजह से आई एम श्योर बहुत एक्टर्स आएंगे, अतरंगी पे भी आएंगे और हर प्लेटफॉर्म पे आएंगे। क्या हमको वो वाली वाइब आएगी, वो जो गाना बजता था, बेपना प्यार है आजा, उसमें तो मैं भूत थी, वो वाली वाइब आएगी क्या? नहीं, वो वाली नहीं, वो बहुत रोमांटिक था, इसमें कुछ हटके है, अतरंगी। Alright, so thank you so much. I think we should move on to the next show. But thank you so much to all of you for giving your time, and please you guys can have your seat. Okay, so now we'll be playing a trailer of both the shows. I request everybody to please pay attention on this beautiful screen here in front of all of you, and let them just sit down, just just dim the light. I want to hear some noise. Okay. First, we would like to have the trailer, please. Please give her a big round of applause. And now, Romit Raj Parashar. Can I please have Rahul Singh,
Akshay Singh. Another cast and crew if they want to join on stage, please most welcome. Please everybody. Moving on to the cast of Kadhiya, please can I request Shilpa Shinde to please join us here on the stage. I request everybody to please give her a big round of applause. Come on! And now can I request Rahul Roy, please join us on the stage. Dolly Chawla, Naveen Bhule, please everybody please join us. Another cast and crew, they would love to join on the stage. Please, you guys are most welcome. And now moving on to Womania, please can I have some noise here for Ashmit Patel. Sophia Hayat, Rishita Bhatt, Abhinav Kohli, Rituparna Sengupta, Asif Sheikh, Rashmi Desai, whoever here, please I request you all to join us on the stage. Any other cast and crew, they would love to join on the stage, please, you guys are most welcome. And now the last, please can I have the man behind, Mr. Vidhu Agarwal, please, stage is all yours, please. The spotlight. So yes, again, I'd like everybody to please share your experience, anything you would like to say, something about the characters that you guys played, and the reason behind choosing the particular one. We can, okay. Good evening everyone. Thank you so much. Vibhu sir को मैं सबसे पहले congratulate करना चाहूँगा, and I pray and I hope and I'm very sure that Atrangi Re as Ullu app becomes even more popular. It's so important that good storytelling happens on OTT platform, and being a very good businessman, I'm sure you know how competitive today's times are. This is a fantastic story, Naam Gum Jayega. It's a thriller, it's a suspense thriller. It's very well shot, and my character name is Farid, and as you have seen the promo, I'm looking forward to answer the press. Welcome. Yes, all of you have seen the program. Thank you so much for having our show on your platform. I would really want all of you to watch the show, of course, and then, tell us what you think about it. But I'm playing Aisha. Why I did this? Because the first time I met our producer, writer, Moni Shikha, she met me and she said, "You are my Aisha." So when a writer says that to an actor, then you know you're in good hands, because she had written it, she felt I am Aisha, and that's why I did it. And of course, there's Akshay who's directed the show, also our producer, and as you would have seen, is also a part of the show, very important part of the show. I'm just very glad that I worked with a team that believed in the story, and more importantly, believed in me, believed that I could be their Aisha. बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप यहाँ पधारे। विभू भाई, अक्षय भाई और आप दोनों की इंडिविजुअल टीम्स को बधाई भी और शुभकामनाएं भी। और किरदार जो है वो एक वैसे पुलिस वालों का काम कहते हैं कि पीड़ा देना होता है, लेकिन ये एक पीड़ित पुलिस वाला है और अपनी पीड़ा का इलाज ढूंढ रहा है, और वो भी पीड़ा दिए बिना मिलता नहीं। तो इतना ही कहूँगा, बाकी देखें इसे और आप बताएं आपको कैसा लगा। Over to you. जैसे आप लोगों ने देखा कि I'm wearing a cap, so actually I'm wearing number of hats in the series. Like you saw me in the trailer as an actor, I'm also the director of the series. And so actually मेरे पास इतनी कमाल की स्क्रिप्ट थी, thanks to Moni Shikha. And उसके बाद हमारे पास एक बड़े अतरंगी पर्सन है विभू जी, जिन्होंने कई बार रात को 12 बजे 1 बजे बुला के अतरंगी बातें करते हैं, जिसकी वजह से कुछ आइडियाज निकल के आ जाते हैं और फाइनली एक ऐसे शो में शेप ले लेते हैं जो अभी आपने ट्रेलर देखा और सारे शोज के जो आपने ट्रेलर देखा। आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ अतरंगी, एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद सच ब्रिलियंट एक्टर्स। आई मीन यू रियली हैव टू सी टू बिलीव इट कि इनकी कमिटमेंट क्या थी। आपने एक ही शॉट देखा कि रोमित जो है अपने अंडीज में आइस पे लेटा हुआ है, वो सिर्फ एक ही शॉट है, ऐसे बहुत सारे इसने सो या हाँ मड फाइट, तो ऐसा बहुत कुछ इन लोगों ने अतरंगी हरकतें की हैं
तो I would say I'm really glad and indebted to all these guys for doing the show and making it such a, I don't know, देखने के बाद ही पता चलेगा अच्छा बना है या नहीं, but yeah, as far as I hear it from people who have seen it in the channel, they like it, so I'm happy, I guess. So over to the writer Bhuvaneshika, if you want to say something. Okay, I'd like to thank Vibhuji first of all for giving us the platform and to portray my story. And then of course I would like to thank my partner in the crime, director Akshay Singh, who is also a producer with me, for taking what I have written to the next level. And of course, as Farhad just said, I've seen my Aisha and Farid and going there in each of them, and it has been lovely working with them, and I think we all made a great team along with Atrangi. And I'd also love to mention Anjali here, who has been a great support also. Thank you Vibhuji, thank you whole team of Atrangi, and thank you our whole team of actors. Thank you. सबसे फर्स्ट तो ये कहूँगी कि जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली थी तो सोचा उल्लू लेकिन ये होता है कि फेथ रखो आप कोई चीज़ पे ऑनेस्टली तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और देखो अतरंगी हो गया और इतने लकी है अतरंगी और विभू जी के, हम सब हमारी देखो कोई कास्ट ही नहीं आए, सब बिजी हो गए इस शो के बाद। मुझे भी कभी काम नहीं देते थे कोई, तो सब बिजी हो गए, कोई आया ही नहीं है। मैं आई हूँ क्योंकि मैं काम कम करती हूँ, और जब आपको ऐसा रोल मिलता है कि आप रियलिटी में किसी की बजाना चाहते हो और वैसा रोल आपको मिल जाता है तो कितनी खुशी होती होगी, सोचो आप। तो ऐसा ही मुझे सोच समझ के रोल दिया है इन्होंने, बहुत अलग है। आई मीन मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं, CBI का रोल है, तो बस कोशिश की है काम करने की। और थैंक यू सो मच वंस अगेन अंजलि, थैंक यू सो मच। और आप बात थैंक यू सो मच। आप कॉन्फ्रेंस रूम में तो बहुत बोलते थे, स्टोरी सुनाते थे तब जाते काम का हिस्सा है ना ये, मतलब ये भी है ठीक। Hello everyone, I'm Ashish Trivedi. I'm really glad to be part of this show called Kadiya. I really love to thank Vibhu sir for giving this opportunity. And show बहुत amazing है, बहुत amazing shoot किया है हमने अफजल सर के गाइडेंस में, और शिल्पा मैम के साथ काम करके तो एक amazing positive वे में amazing experience था मेरा अभी तक का। बहुत सीखा, honestly बहुत सीखा, how to deal with things on set while you get angry, if you get, then how to handle it, and then you won't. It was fun. जितना हमें मजा आया काम करके, pretty sure आप लोग देखेंगे आपको भी उतना ही मजा आएगा। हर महीने फोन आता था इनका 2 बार, सर कब रिलीज हो रही है, क्योंकि सर इतने एफर्ट्स डाले ना, हमें पता है कि क्या बनाया हमने, और वो आ नहीं रहा है, लोगों को दिख नहीं रहा है। हर महीने समझ रहे हो आप सर, अंदर से आता था वो कॉल करने का जज्बा। Alright, thank you so much. Thank you so much to all of you, and over to the media. Shoot it like a fireball. Go for it. नंबर शिल्पा जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं यहाँ। शिल्पा जी, आप ऐसे शो का हिस्सा रह चुकी हैं जिसमें एक ह्यूमर, मैं भाभी जी घर की बात कर रहा हूँ, ह्यूमर था, सिंपलिसिटी था, रिश्ते की वैल्यू दिखाई गई कि कैसे पड़ोस में प्यार होता है। दूसरी तरफ कंटेंट की बात करें अगर, OTT पे तो इतना वायलेंस है, इतना नेगेटिविटी है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको नहीं लगता कि OTT का जो कंटेंट है उसे भाभी जी जैसे शो पे सबक लेना चाहिए कि सिंपलिसिटी आनी चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, क्योंकि आज का स्ट्रेसफुल माहौल है,
तो ह्यूमन कोशेंट बहुत ज़रूरी है, सिंपलिसिटी बहुत ज़रूरी है और रिलेशनशिप वैल्यू बहुत ज़रूरी है अब और इस बारे में। मैं तो वही कहूँगी कि हम लोग कहते बहुत कुछ है, ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता सब कुछ है, तो आधा क्यों करें, पूरा कर दे। हर चीज़ आधी आधी होती है कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में हो तो सब कुछ रहा है। तो आई थिंक ये एक फ्लेवर है, क्योंकि जब हम सीरियल करते हैं तो सीरियल में बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिलीज देख रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो एक आर्टिस्ट के लिए एक बांध के रख दिया जाता है। OTT ऐसा है कि आप कुछ भी, बड़ा मजा आया था मुझे जब कहा था आप ये गाली दे सकते हो, मैंने कहा मैंने कभी बोली नहीं है, लेकिन मुझे बोलनी है और मैंने बोल दी, तो बड़ा मजा आया। तो जब आर्टिस्ट को करने में मजा आता है ना, तो ऑडियंस को भी देखने में मजा आता है, तो मजे तो सब लेते हैं। तभी तो उल्लू भी है और अतरंगी भी आ गया। उल्लू अब अतरंगी हो गया। यस, नहीं उल्लू भी तो है ना, उल्लू भी चाहिए लोगों को, किस किस को नहीं चाहिए बताओ, सबको चाहिए। Hi, Mayur here, center here. My question is, I think आधा चीज़ तो इन्होंने पूछ ली, बट मैं तो मेरा जो सवाल ये था जो मैंने पहले अली को भी पूछा था, बेसिकली टेलीविजन पे ऑब्वियसली आपने कुछ एक लिमिटेशन होती है इन टर्म्स आई वुड से स्टोरी टेलिंग और एक परफॉर्मेंस उसको लेके भी, और इतने सालों से टीवी करना आप लोगों ने अपना ब्रांड बनाया है, शिल्पा जी ने बरखा, और आपकी जो ऑडियंस होती है वो एक ट्रेडिशनल फैमिली ऑडियंस जो हिंदी हार्टलैंड में बसी हुई है, ऐसा रेटिंग्स कहती हैं, तो वो ऑडियंस को आप इस कंटेंट में आकर्षित करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? शिल्पा, यू कैन से एंड देन बरखा, आई अप्रिशिएट इफ यू कैन। थैंक यू। मैं तो वही कहूँगी ऑडियंस को कि आर्टिस्ट है, हम लोगों को अभी प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम वैरायटी ऑफ रोल कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें एक्सेप्ट करें कि आपने ये क्यों किया, आपने किसी किस लिए, आपकी पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली लिमिट हर आर्टिस्ट को जो करता है उसकी लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, OTT है तो कुछ भी करो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं बंधे हुए नहीं हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो लोग भी हर चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, देखना तो सबको सब कुछ है, लेकिन बोलना नहीं है, फिर जाके चुपके से देख तो लेते हैं, तो क्या कराओगे? चला जा रहा है। आकर्षित कैसे करेंगे? आकर्षित करके कुछ भी है ऑडियंस। आई थिंक टेलीविजन से मूव करके आजकल टीवी शोज भी लोग अपने फोन पर देख रहे हैं, सो देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस OTT की तरफ ऑलरेडी आकर्षित है। एज अ टेलीविजन एक्टर एक लिमिटेशन होता है टीवी में, हम एक सिमिलर टाइप के रोल्स करते हैं, ऑडियंस हमें सिमिलर टाइप के कैरेक्टर्स में देखती है, सो उनके लिए ये आकर्षण है कि बरखा बेस्ट क्या कर सकती है, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई दे वुड कम एंड वॉच दिस शो, क्योंकि उन्होंने बरखा को एक तरीके से देखा है, पर एज अ टीवी एक्टर मैं और क्या कर सकती हूँ, OTT इज गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, और जो भी ऑडियंस है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो ज़रूर देखना चाहेंगे कि और क्या कर सकते हैं बरखा, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे वुड वॉच OTT shows. हाय, मेरा सवाल विभू सर से है। एक मिनट, पहले पीछे जो चिल्ला रहे हैं शांत हो जाओ प्लीज। हेलो, अरे पीछे वाले शांत हो जाओ। थैंक यू सर। विभू सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने जैसे मेंशन किया कि टर्किश शो भी लाएंगे आप इसमें, इसके पहले एक चैनल आया था जिंदगी जिसपे सेम कंटेंट लाया था, जो बहुत लोगों ने देखा था, पसंद भी किया था, और अभी भी पाकिस्तानी शोज हैं या टर्किश शोज लोग देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस। सो आपको क्या लगता है कि ये एक्सेप्ट होगा, पॉलिटिकली देखा जाए या फिर जैसे भी अगर देखा जाए, आपको लगता है कि ये चीज़ें मेंटालिटी है लोगों की एक्सेप्ट करें? सर, शो तो ज़रूर, पहले जैसे आपने बताया, जब टर्किश कोई सोच भी नहीं सकता था, तब जी ज़िंदगी लेकर के आया और लोगों ने उसको उस वक्त एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब आज तो बहुत वैरायटी है और लोगों की सोच बहुत बदल चुकी है, तो आज तो और ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। रही बात किसी भी कारण से अगर कोई चीज़ की दखलंदाजी होती है या कोई कहा जाता है कि
गवर्नमेंट अगर बोलती है, सरकार बोलती है कि नहीं भाई ये चीज़ हमारे देश में इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलनी चाहिए, तो ठीक है, ऑफ कोर्स आपने जैसा बोला कि वो भी नहीं चला, बट ऐसा नहीं था। जो मैंने स्टडी किया है उस चैनल का जीआरपी बहुत अधिक नहीं आई, लेकिन परसेप्शन एज ए पब्लिकली बहुत आई। तो इसका मतलब परसेप्शन हाई होने का मतलब पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही थी आज से 15 साल पहले। तो आज तो बहुत है, और नॉट ओनली हमारे ही उसमें है, काफ़ी और भी अदर चैनल्स हैं जिसमें टर्किश शो और इंटरनेशनल शोज दिखाए जा रहे हैं। मेरा सवाल रोमित जी से। रोमित जी, आप काफ़ी समय बाद नज़र आ रहे हो, काफ़ी समय बाद आप टेलीविजन पे भी नज़र आ, OTT की मैं बात करूँ, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आपके लिए, कुछ अपने किरदार के बारे में आप बता दीजिए। मैंने अपनी करियर की शुरुआत फिल्मों के साथ की, एंड उसके बाद मैंने टेलीविजन शोज कर रहा था। फॉर मी OTT इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्म रिलीज नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारी उनके पास कहानियाँ हैं जो दिखाना चाहते हैं, वो टीवी पर नहीं दिखा सकते। वो एक कह सकते हैं आपकी फाइनाइट सीरीज हैं, एंड OTT इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी। एंड एज एन एक्टर मैंने गौतम घोष के साथ काम किया, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, एंड टेलीविजन के डायरेक्टर्स जो फिल्म बनाना चाहते हैं, उनकी सोच इतनी अच्छी है, उनके साथ भी काम किया है। तो OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक फिल्म मेकर और एक टेलीविजन डायरेक्टर दोनों आके अपनी स्टोरीज कह सकते हैं। वेरी सिंपल, एक्टर्स के लिए इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज टैलेंट जो है, वेदर इट्स अ सिनेमाटोग्राफर, वेदर इट्स अ डायरेक्टर, वेदर इट्स अ राइटर, you get the best talent on OTT। सेकेंड थिंग, फर्स्ट एपिसोड आप 10 मिनट में अगर आपको स्टोरी अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप दूसरी चीज देख लेंगे, इतना कंटेंट है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, all good filmmakers, all good storytellers tell their stories, and a best time for an actor to be on OTT so that we can showcase our talent। So आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, and I'm very excited। मेरी 2 वेब सीरीज ZEE5 पर भी हैं, यूजर प्लेटफॉर्म पर, एंड इस पर आ रही है, भी very excited। थैंक यू। बरखा जी, सेम सवाल आपके लिए भी है मेरा। आपके किरदार का मैंने जितना भी देखा काफ़ी अमेजिंग लगा, और जितना भी काम आपका देखा काफ़ी अमेजिंग रहता है आपका काम, बट इस पर्टिकुलर रोल को लेके कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और क्या कुछ मुझे एज एन ऑडियंस मुझे कितना डिफरेंट दिखने मिलेगा? एक्साइटमेंट से ज़्यादा आई थिंक एक कन्विक्शन होता है टू प्ले अ कैरेक्टर, दैट इज समथिंग जो मुझे इसमें लगा। एक औरत जो बहुत खुश है अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ, और अचानक से उसकी ज़िंदगी जो बदल जाती है। आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, समटाइम्स आपकी ज़िंदगी एक तरीके से चल रही होती है और अचानक से ज़िंदगी बदल जाती है। उस किरदार को प्ले करना है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कई बार है कि हम एक ही उसमें जीते हैं, ये मेरी लाइफ है, ये सही चल रही है, सब ठीक है, बट सडनली जब कुछ होता है तब वो क्या करती है। आई थिंक दैट इज व्हाट माय कैरेक्टर इज ऑन दिस शो। एंड जैसा आपने ट्रेलर देखा है, ऑफ कोर्स देयर इज दिस होल थिंग वी टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी, वी टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। मेरे पति हैं, मेरे शौहर हैं, टेररिस्ट हैं, नहीं है, मतलब क्या हो रहा है। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट दैट। So I'm very excited and I'm very happy that I got to play a character like that, जिसमें इतनी duality है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक कुछ हो गया। So yeah। Hi, one final question from my side for Vibhu ji। Vibhu ji, कुछ महीने पहले हमने नवाजुद्दीन साहब काफ़ी नाराज थे, और उनकी एक कोट आया था, उन्होंने शायद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अब OTT से पक गए हैं और वो OTT की दुनिया छोड़ रहे हैं। तो जरा बताएंगे कि इस नाराजगी के बाद आपने उन्हें कैसे मनाया कि भाई आइए आप ये दूसरे OTT की तरफ अतरंगी नहीं है, ये अतरंगी है। नहीं, देखिए आपको मैं क्लियर कर दूँ, हम लोगों ने ऐसा होता है जब OTT होता है तो उसके अंदर 5000 कॉन्टेंट होते हैं, सारे कॉन्टेंट बनाया पाना ये संभव नहीं होता। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिलेगा। बट जब आपने उन्हें ये ऑफर किया था, क्या ये उनकी नाराजगी उससे? मैं ये कह रहा हूँ, जब OTT होता है तो उसमें 5000 कंटेंट पब्लिक ऑडियंस को दिखाने के लिए आपको डाले जाते हैं।
तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे कंटेंट जो है वो ओरिजिनल हो और सेल्फ प्रोड्यूस किए हुए हों या चैनल्स को प्रोड्यूस करें। तो बहुत से कंटेंट आप बाहर से भी लेते हो जो आप अपने ऐप को मुकम्मल बनाने के लिए। Thank you. Alright, so I guess we're done with the question answer. So thank you so much first of all to all of you. I request you all to please take your seats, and please I want everybody to please give them a big round of applause. Come on, can I hear some noise here? Come on! So now we are going to have a small photography session. So first of all, sir, Vibhu sir, please if you can stay back on this stage. It's for first of all solo pictures. आगे हाँ बोलिए ना So now can I please have the entire cast of Kadiya to please come on the stage for a group picture. How's everyone doing? This is Arya Babbar. So yes, Arya Babbar is here with us on the stage. Please Arya के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए everybody. Thank you so much Arya for joining in here, gracing this occasion. तो स्पेशली आपके हिसाब से मेरे साथ पहले कलर शेयर किए गए थे उस हिसाब से मैंने आज अपने कपड़े डिजाइन किए. Thank you so much for sticking in it. And I wish the best to the channel. I wish the best to the app. Love you all. Thank you, thank you, thank you so much. So the team representing Naam Gum Jayega here with us on the stage. Thank you so much to all of you. Trip is here with us. Trisha Banerjee. Ali is here with us. Ali, please. Krip is here with us. Nivedita, please, fast. Just for one picture. Come close, come close. Close now. Come closer. Sir, pass me. सामने everybody. All of you. So thank you so much to all of you, and this is here we end this evening. But yes, to the media we will be having one-on-one session to that side. But thank you so much to all of you for joining in here. एक बार मैं चाहती हूँ जाने से. And yes, sir, we have bar open for everybody. Bar is open to all for all of you. Dinner is here. Please. Please camera.
विभू सर, पहले तो कांग्रेट्स करना चाहूँगा, एक नई शुरुआत की है और ये बहुत ही बेहतर शुरुआत की है। इतना आसान तो नहीं रहा होगा ये सफ़र जब आपने प्लानिंग की थी, जब आपके दिमाग में बात आई, तो व्हाट वाज द थिंग व्हिच रियली मेड यू टू लॉन्च दिस ऐप? पहले मैं तो बता दूं कि हमारा ऐप का कोई विचार नहीं था। हम इसका एक टीवी लाए थे और जो हमने जून 5 या 6 जून को हमने लॉन्च किया था, 4 जून को। और उसके बाद जब हमने इस ऐप को ये किया तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं पहले से ही एक टेक्नोलॉजी में घुसा हुआ हूँ कई सालों से, तो मुझे टेक्नोलॉजी एज ए ऐप बनाना कोई मेरे लिए डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो मैंने इमीडिएटली सोचा कि बहुत से लोग कंटेंट अभी टीवी इंडस्ट्री में जो टीवी का जो DTH है उससे काफ़ी लोग कटा रहे हैं या नहीं ला रहे हैं या ले रहे हैं। वो लोग ज़्यादातर डिजिटल आ रहे हैं, जो घर में भी डिजिटल बॉक्सेस आजकल लग गए हैं, या लोग मोबाइल पे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं या गूगल टीवी के थ्रू देख रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिजिटल के अंदर लाना ज़्यादा अनिवार्य हो गया था, इसलिए इसको मैंने प्लान किया। और इसमें जब मैंने प्लान किया तो इसमें मैंने कुछ ये सोचा कि नॉट ओनली टीवी, इसके अंदर हमें और चैनल्स की तरह कुछ डिफरेंट कंटेंट दिखाना पड़ेगा एज ए OTT। तो वो एज ए OTT हमें उसमें कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो प्रीमियम होगा, जो सिर्फ आप OTT पे देख सकते हैं, हमारे अतरंगी ऐप पे देख सकते हैं, और कुछ ऐसा होगा जो आप टीवी पे देख सकते हो। और उसका हाइब्रिड मॉडल को हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ पर एज ए OTT में दिखाते हैं। ये भी कहना चाहूँगा, ऐप लॉन्च करने के बाद में जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नसीर सर जैसे लोगों को आपने लिया है, इतना तो आसान नहीं रहा होगा क्योंकि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कितना कन्विंस करना मुश्किल होता है। तो क्या नहीं, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं होती। हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, हमारे लोग इसमें लगे रहते हैं। कुछ दिक्कतें आती हैं, उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। दिक्कत है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो दिक्कतें हैं, ये चलता रहता है। बट ठीक है, आप कोई भी बिज़नेस, कोई भी व्यापार करते हैं, उसमें दिक्कतें होती हैं, नॉट इन टर्म ऑफ रॉ मटेरियल या फिर एक्टर या फिर लोकेशन, कुछ भी आप कह रहे हैं, तो ये चलता रहता है। बट टीम है हमारे पास ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बहुत अच्छी, जो अच्छे बाखूबी तरीके से इसको करके और आप लोग के सामने। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, एस्टैब्लिश प्लेयर, नेटफ्लिक्स की बात कर लें, डिज्नी हॉटस्टार की बात कर लें, उनसे कैसे बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, या एक तरह से विजन आपका रहेगा कि उनसे भी शायद कल को बड़ा कुछ करें? देखिए सर, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक ब्लैक बोर्ड है और उस ब्लैक बोर्ड के अंदर सब लोग अपनी एक लाइनें खींचते हैं, ठीक है। हम उनसे बड़ा बनने के अच्छा है कि हम एक ब्लैक बोर्ड पे वाइट कलर की चौक की जगह अगर हम नीले कलर की चौक से अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो आपको उभर के अलग दिखती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके बराबर बनने की कोशिश में हम अपना वजूद भूल जाएं। हमें अलग बनना है, अलग दिखाना है, तो हम अपनी कोशिश में लगते हैं, बाकी ऊपर वाले और पब्लिक के हाथ में सब। सर एक आखिरी सवाल। जी, चीज़ें हो चुकी हैं। मेरा ई-कॉम पोर्टल आ गया है। अभी हम लोग स्पोर्ट्स में भी घुस रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी हमने लास्ट अभी UAE और बांग्लादेश मैच हमने दिखाया। तो अभी हम इसका एक नया ऐप भी ला रहे हैं स्पोर्ट्स का, तो वो एक अलग है। तो अभी शायद अभी लाएँ, हो सकता है, बट टाइम लगेगा। थैंक यू। अमर सर, सबसे पहले हाँ सेंटर सर, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, यू हैव बीन इन इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, ये ऐप का जो फॉर्मेट आया है आपके लिए कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है? यू नो, हाउ डू यू फाइंड इट्स वेरी कन्वीनियंट यार ऐप। ये जो ऐप का फॉर्मेट है, ऐप में सब कुछ मोबाइल में है। Jio TV में मोबाइल में है, आप पूरी टीवी देख सकते हो, आगे पीछे सब कुछ प्रोग्राम्स। OTT ने अपना रंग जमा दिया है। OTT इज कॉम्पिटिंग विद फिल्म एंड TV बोथ, सो आई थिंक ऐप इज हियर टू स्टे फॉर एवर। तो व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ विद बालाजी, मतलब आपको छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या एक एक्टर वो लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट कर सकता है जो एक टेलीविजन या फिल्म में होता है? मीडियम छोटा होता जा रहा है, यू नो। पहले बड़ा पर्दा था, फिर TV आया, अब मोबाइल आ गया है, इसके बाद पता नहीं क्या आएगा। सो आई डोंट नो इससे छोटा क्या आ सकता है। तो आई थिंक ये जो मीडियम है अब यही है, फ्यूचर यही है। एप्स एवरीवेयर, गूगल इज़ रूलिंग द वर्ल्ड, एप्स आर रूलिंग द वर्ल्ड। और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर तो यही है कि जब आप कहीं भी हो दुनिया में, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने बेड पे बैठे हो, आप कहीं बाहर घूम रहे हो, या कहीं भी हो दुनिया में, आपको कुछ भी कोई भी प्रोग्राम आपसे आप मिस हो गया है, देखना है, तो आपको मोबाइल है, इमीडिएटली आप ऐप खोल के आप देख सकते हो। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। एक साथ सारे एपिसोड देख सकते हो। आपको रोज़ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ 8:30 को ये शो आएगा, मैं वेट करूँगा, ऐसा नहीं है। आज एक साथ आप 2 बजे देख सकते हैं शोज़। तो इट्स वेरी एक्सेसिबल, वेरी कन्वीनियंट, आपके वक्त पे आप देख सकते हो। सो दिस एप्स आर हियर टू स्टे। एंड लास्टली आस्किंग, इज दिस ऐप इंडस्ट्री वो एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के लिए? अगर बिजनेस की बात करें, फिल्म बिजनेस को या डेफिनेटली ऐप अपने आप में बिजनेस है। कोई भी आज उठा के ऐप खोल सकता है, अपना सर्वर
खरीद के या रेंट करके, सर्वर को रेंट करके आप अपनी प्रोग्रामिंग किसी की आप खुद बना सकते हैं एज एन ऐप ओनर, या किसी को बोल सकते हैं जिस भी बजट में बनाना चाहो। इट्स वेरी कन्वीनियंट, यू नो। और ये बेसिकली एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। कंटेंट इज किंग। अगर कंटेंट अच्छा है तो आपका ऐप चलेगा, कंटेंट अच्छा नहीं है तो हज़ारों जो बंद हो गए जैसे बंद ही हो जाएगा। बट एप्स विल कीप कमिंग एंड द बेस्ट कंटेंट विल स्टे। राइट, डन। मैम, इतने वक्त से आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, ये जो ऐप का फॉर्म होता है, वेब सीरीज़ या OTT का जो प्लेटफॉर्म है, कितना आपको इंस्पायरिंग लगता है? क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पर्टिकुलरली? बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। वेरी वेरी ग्लैड कि यू नो ये वेब स्पेस एक क्रिएट हुआ है जहाँ पे टेलीविजन एक्टर्स भी काम कर रहे हैं, फिल्म एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स ब्रिज द गैप बिटवीन टेलीविजन एंड फिल्म्स। यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, अलग अलग कंटेंट बन रहा है। अनलाइक टेलीविजन जहाँ पे एक टाइप का कॉन्सेप्ट यू नो होता है, आई थिंक वेब में इतनी अलग अलग स्टोरीज, इतनी अलग अलग कहानियाँ सामने आ रही हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इतना काम बढ़ गया है, नॉट ओनली फॉर द एक्टर्स, फॉर टेक्नीशियंस, फॉर एवरीबडी। सो आई थिंक इट्स जस्ट गुड, इट्स अ गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री। देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम एज वेल, मतलब डायलॉग डिलीवरी के हिसाब से या किसी भी हिसाब से, उसके बारे में बताइए कितना ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम तो इतना है वेब पर कि मतलब कोई कुछ भी बना सकता है। बट चलिए, आई थिंक एक तरीके से वो ठीक भी है, क्योंकि देखिए वी आर ऑल एडल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे। वी शुड हैव द फ्रीडम टू शो आवर क्रिएटिविटी। और जो ऑडियंस है दे आर ऑल्सो एडल्ट्स। आपको भी यू नो वो ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप क्या देखना चाहते हैं। सो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। एंड लास्टली आस्किंग अ कंप्लीट वुमेन सेंट्रिक बेसिस सब्जेक्ट बनते हैं वेब शोज, वो कितनी अच्छी बात है कि एक फीमेल आर्टिस्ट को ही पूरा शोकेस किया जाता है एक प्रोजेक्ट में। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग फ्रॉम योर साइड। देखिए, मैं तो कमिंग फ्रॉम टेलीविजन, टेलीविजन इज ऑल्सो अबाउट वुमेन। ऑल द टेलीविजन शोज द सेंट्रल कैरेक्टर इज अ वुमन। तो मुझे तो आदत ही है टू बी पार्ट ऑफ अ शो विच इज़ वुमेन सेंट्रिक। एंड द फैक्ट दैट वेब इज डूइंग इट मोर एंड मोर, आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक ये बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है वुमेन सेंट्रिक, मैन सेंट्रिक। एक कहानी है, उस कहानी का लीड किरदार है। अब वो यू नो वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन, आई थिंक डजंट मैटर। It's a story, it's a character, and that's what we're doing. So if there are more women characters, I think good for us, and I'm extremely proud of that. But at the end of the day, it's a story and it's a character. Thanks, Sandra. चलो रोलिंग। शिल्पा जी, इन टुडेज टाइम आप इतने दिनों से हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये जो OTT का कॉन्सेप्ट है, वेब शोज़ का कॉन्सेप्ट, वो कितना इंस्पायरिंग लगता है आपको? से मुझे इंस्पायरिंग तो बहुत लगा था, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। बट हाँ, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो कुछ चीज़ें लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैं टेलीविज़न कर चुकी हूँ, तो एक होता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप खुल के एक्टिंग कर सकते हो। आपको बांध के नहीं रखा हुआ है कि आप ये नहीं बोल सकते या आप गाली नहीं बोल सकते। कैरेक्टर अगर डिमांड करता है तो आप बिंदास होकर बोल सकते हो। टीवी इंडस्ट्री में इतना सक्सेस पाया आपने, फिल्में भी की हैं। जब आपको अप्रोच किया गया था, अतरंगी की बात करें, तो क्या तुरंत से नोट दिया या देयर इज सम एप्रीहेंशंस, देयर समथिंग यू थिंकिंग अबाउट इट? एक्चुअली सबसे फर्स्ट तो वो होता है ना कि जब आप कुछ चीज़ पॉजिटिव सोचते हो तो वो पॉजिटिव होती है। मुझे जब अप्रोच किया था तो एक्चुअली तो उल्लू ही था, और उल्लू पे हमने देखा है कि काफ़ी अलग अलग कंटेंट रहा है लोगों की सोच अलग है। ऑब्वियसली उसके ऊपर स्टोरीज़ भी वैसी थी, बट मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने ये सोचा था कि ये हमारी जो ये स्क्रिप्ट है करिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि बहुत टर्न एंड ट्विस्ट है स्टोरी में। और जो मेरा कैरेक्टर CBI ऑफिसर का रोल है, तो पहली बार मैं कुछ अलग कर रही हूँ। मेरा हमेशा रहा है कि मैं कुछ अलग करूँ, और सबसे मेन बात तो क्वालिटी को मैं बिलीव करती हूँ। लकीली वो वही है इसमें, तो मैंने इसीलिए चुना राहुल रॉय जी, जो आशिकी बॉय, हमने उनको देख के आशिकी सीखी है। तो उनके साथ काम करना ये बहुत बड़ी बात है कि आप उनके साथ स्क्रीन पे शेयर करें, और इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। लास्टली व्हाट इज क्रिएटिव फ्रीडम की बात करें, जैसे आपने कहा मुझे गाली देना अच्छा लगा, आई मीन देयर इज लॉट ऑफ फ्रीडम इन OTT स्पेस, वो फ्रीडम कितना अच्छा मानती हैं आप? फ्रीडम में वही होता है ना, जहाँ तक आपकी एक लिमिट, आपके ऊपर क्या सूट करता है, आप क्या कर सकते हो, आपने अब तक कैसे किरदार किए हैं, तो
उस लिमिट में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पर्टिकुलर नॉट कड़िया, मैंने और एक सीरीज़ की है जिसमें मैं पुलिस वाली हूँ, जिसमें ज़िनत अमान जी है, कवि पल्लवी जोशी है, कविता कौशिक अपना कविता अपनी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पल्लवी जोशी, कृतिका देसाई वगैरह काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। तो उसमें मैं पुलिस का रोल कर रही हूँ, उसमें मैंने गाली दी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड पुलिस वाली हूँ, लेकिन मैं गाली दे रही हूँ क्योंकि कैरेक्टर वैसे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर पुलिस वाले गाली देते हैं, लेकिन जब तक वो उस तरीके से बात नहीं करेंगे तब तक आप लोगों से उगलवा नहीं सकते वो चीज़। आई एम हैप्पी कि आप वैरायटी ऑफ रोल कर सकते हैं। नहीं